Good morning, students. In previous video, we have already learned about charges, electric charges, conductor, insulator, and all these things. And today we are going to learn electric current. Our new topic is electric current. So, what is electric current? So simply, when we take a wire or a conductor, okay, and when we join it with a cell or a battery with providing potential difference V. What is the potential difference? V. Then in these wire or in this conductor, then flow of charges are going on. Flow of charge होने लगता है. That means electrons क्या होने लगते हैं? Move होने लगते हैं. तो it is the rate of the flow of charge. So ये क्या होता है, अगर इसको हम किसी बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं, then this bulb is glowing. That means when we give potential difference between two ends of the conductor, then the charges are flowing, and when these charges are flowing, then the bulb is glowing. So it is the rate of flow of charge. So electric current is defined as it is the rate of change of charge. That means current is identified as I. So I is rate of flow of charge. Charge means Q. If Q charges is flowing in this conductor, and the rate means upon T. So this is the formula for electric current. Okay. For example, when we take example, and in this circuit, when we provide 10 coulomb charge in 1 second, 10 coulomb charge in 1 second, and here 10 coulomb charge in 2 seconds. In another circuit, when 10 coulomb charge is moving in 2 seconds, then what is the electric current? That is Q upon T. That means 10 upon 1, that is 10 ampere, and that is 10 upon 2, that is 5 ampere. So यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना कम टाइम में अगर कोई चार्ज ज़्यादा फ्लो हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा. सो इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेज़र करते हैं? दैट इज़ एमीटर. इट इज़ मेजर्ड इन एमीटर. डिवाइस नेम इज एमीटर, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज A. Okay, and SI unit of electric current is ampere. Or what is ampere? When 1 coulomb charge is flowing in a conductor in a 1 second, that will be defined as 1 ampere. When 1 coulomb charge is provided in a conductor in 1 second, that is called 1 ampere electric current. Okay, this is clear. And remember that ammeter is always added in a circuit in a series. That means in a series combination, if there is positive terminal and there is negative, then there should be always a negative and there should be always a positive, because we know that the flow of the current is the opposite to the flow of electric charges. अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है, दैट मीन्स फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इट इज ऑलवेज अपोजिट. ओके, सो हियर वन न्यूमेरिकल इज दैट an electric toaster draws a current of 0.5 ampere for 10 minutes. Okay, for 10 minutes. Calculate the electric charge that flows through the circuit. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज. आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को निकालना है. और क्या क्या दिया हुआ है आपको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज को निकालना है. दैट मीन्स आई इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन टी. अभी जस्ट हम लोग ने देखा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. सो हियर करंट इज गिवन. व्हाट इज द करंट? 0.5 एम्पियर. ओके, एंड व्हाट इज गिवन? अनदर थिंग, टाइम इज गिवन, दैट इज 10 मिनट. ओके, आपको आई दिया है और टी दिया है. देन यू कैन फाइंड व्हाट इज, वी हैव टू फाइंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड क्यू. सो पुटिंग ऑन दैट फॉर्मूला, 0.5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 10 मिनट. हियर 10 मिनट. सो वी हैव टू चेंज इन अ सेकेंड, बिकॉज टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड है. सो हमको इसको सेकंड में चेंज करना है. तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज करने की, यू कैन चेंज इन ओरली. दैट इज
600 second. Okay, so putting that formula, we have 0.5 into 600, that is 300 coulomb. Then 300 coulomb will be your electric charge in the electric toaster. Okay, this is your answer. Any problem? Okay, moving to the next topic, that is Ohm's law. Okay, yesterday I have told that tomorrow I will give you the some videos for Ohm's law. So what is Ohm's law? First of all, we have already know that to flow the electric current in any circuit, we have to give potential difference. We have to give potential difference. Let example, अगर कोई दो पाइप है, किसी में हाई लेवल वाटर है, किसी में लो लेवल वाटर है, सो इट्स नेचुरल दैट इट्स ऑब्वियस कि हाई लेवल से लेकर हमको क्या, हाई लेवल से होकर ही वाटर क्या होगा, लो लेवल में फ्लो करेगा. Because quantity of that water, we can say that the quantity of water current is more in a high level pipe or low in a low level pipe. So वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होगा, फ्रॉम हाई टू लो. वाटर कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई लेवल पाइप टू लो लेवल पाइप. ओके, बट when we have to give a minimum quantity or a equal quantity in both the pipes, वाटर को हमको दोनों पाइप में मिनिमम क्वालिटी एक फिक्स्ड वैल्यू तक ही वाटर ले जाना है, देन वी हैव टू गिव अ दैट मच पोटेंशियल डिफरेंस. अगर जैसे जैसे डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फ्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का करंट भी क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा. पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा. पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे, हमारा क्या होगा, करंट भी क्या होगा, कम होगा. सो व्हेन कंडक्टर इज हियर एंड वी नो दैट इन कंडक्टर it is made up of atoms. It is made up of atoms, or in that atoms we have a free electrons. What is free electrons? Because in this, due to these free of electrons, क्या होता है, आपका कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इसी फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए के साथ. ठीक है. सो व्हेन वी अप्लाइड अ वोल्टेज, तो हमको क्या होता है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ डायरेक्शन, इन अ सेम डायरेक्शन. हमको इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन देने के लिए हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि कितना हमको करंट चाहिए किसी खास कंडक्टर में और किसी खास, जैसे हम लोग पाइप का एग्जांपल लिए कि कितना वाटर चाहिए उसमें. तो व्हेन वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ फिक्स डायरेक्शन. तो उनका एक अपना डायरेक्शन हो जाता है, जिसके चलते वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ड्यू टू फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स. ये जब चार्जेस मूव करेंगे तो एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एंड दीज फोर्सेस एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट कंडक्टर, एंड हेंस electricity is flowing. That means current is flowing. So what Ohm's law states, that Ohm's law always states that the current flowing through a conductor, listen carefully, that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. That means if current is flowing in this conductor, when we applied voltage V, voltage means potential difference V, then it always proportional to V. I is always proportional to V. What is that means? Proportional means what? When we increases potential difference, when we double the potential difference, our electric current should also be doubled. जब पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे, हमारा करंट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस को ट्रिपल करेंगे, हमारा करंट में क्या होगा, ट्रिपल होगा. समझ रहे हो? सो आई इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू वी. दैट मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा, उसके एक रिलेशनशिप में होगा. दैट मीन्स हमेशा वो उसके प्रोपोर्शनल होगा. सो व्हेन वी No, it is the first thing of Ohm's law. And second, what is the second thing?
Ohm's law state that the electric current is also proportional to the resistance of the wire. That means if we remove this proportionality, हमको पता है कि किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं. सो व्हेन वी रिमूव दिस कांस्टेंट, हियर आर इज गिवन. सो आर इज व्हाट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. आर इज व्हाट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं. ओके, इसी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं. सो सिंपली फ्रॉम हियर वी कैन से दैट R इज इक्वल टू, हियर R का अगर वैल्यू निकालते हैं तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई. यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज योर ओम्स लॉ. सो व्हाट इज द ओम्स लॉ? फर्स्ट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट थिंग. एंड द सेकंड वन इज करंट इज inversely proportional to the resistance. Here what we are going to say, R is equal to V upon I. That means अगर हम जब भी R को बढ़ाएंगे तो हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. सॉरी, R को बढ़ाएंगे, दैट इज रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट क्या होगा, कम होगा. सो बेसिकली व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस इज अ अपोजिशन ऑफ करंट, अपोजिशन टू द करंट. मतलब ये क्या करता है, करंट को, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, अपोज करता है. लेट्स टेक एग्जांपल विद दैट. व्हेन वी टेक अ कंडक्टर, अ कॉपर वायर और व्हाटएवर सिल्वर मेटल, देन यहाँ क्या होगा, एटम्स भी क्या होगा, कॉपर के ही होंगे. ओके, सो देयर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. बट व्हेन वी add with the potential difference in the circuit, potential difference जब देते हैं between its two ends, तो क्या होगा, flow of charge इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक कंडीशन इसका क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा. बट व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दे विल कोलाइड विद द एटम्स ऑल्सो. ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये क्या होगा, एटम से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे. और जब एटम से कोलाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, अपोज करेंगे, रोकेंगे. अपोज मीन्स रोकेंगे टू द फ्लो ऑफ करंट. इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या करेंगे, ये अपोज करेंगे. सो जब अपोज करेंगे तो क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, कम होगा. सो बेसिकली रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज अपोजिशन टू करंट. ये क्या करता है, करंट के अपोजिशन को क्या करता है, रोकता है. सो when electrons move within a conductor, they collide with the other electrons and also with the atoms. Okay, so thus some obstruction is experienced by the moving electrons, which provides opposition or resistance to the current flow. So यहाँ पे रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. सो इफ R इज इक्वल टू V अपॉन I, दैट मीन्स इफ I इज इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा. सो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट ओम्स लॉ स्टेट दैट द फर्स्ट थिंग इज current is directly proportional to the potential difference between its ends, and the second one is current is inversely proportional to the resistance. यहाँ पे क्या है आपका, inversely proportional है. अगर हम लोग I को बढ़ाएंगे तो R क्या होगा, कम होगा. अगर R को कम करेंगे तो I क्या होगा, बढ़ेगा. क्लियर है ये? तो हर एक मेटल का जो क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस हर एक मेटल का अलग होता है और इट इज रिप्रेजेंटेड एज आर. ओके, कैपिटल आर. और SI यूनिट ऑफ द रेसिस्टेंस इज ओम. व्हाट इज ओम? एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट resistance of a conductor depends on what material or what is the terms which resistance of the conductor depends. So firstly हमारा क्या है, resistance of the conductor depends on its area of cross sectional. मतलब एरिया, कितने एरिया से होके उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है. अगर इतने क्रॉस सेक्शनल में अगर किसी वायर के इस एरिया से होकर अगर हमको इलेक्ट्रॉन मूव कराना है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इसमें हमको ज़्यादा करना है या फिर कम करना है तो यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या करता है, मैटर करता है. अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, करंट कम फ्लो करेगा, बिकॉज वो अपोजिशन क्या होगा, ज़्यादा होगा. और अगर रेसिस्टेंस कम है तो
करंट क्या होगा, फास्ट मूव करेगा, करंट का मूवमेंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड थिंग, उसके लेंथ पे भी डिपेंड करता है। क्या करता है, उसके लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर का लेंथ कितना है, ठीक है ना। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच, यहाँ पे सिंपली हम लोग रेसिस्टेंस को अगर डिफाइन करते हैं तो अगर कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है विथ इट्स लेंथ, ठीक है, एंड डिक्रीज होता है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल से, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आर का आपका बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन I, दैट इज 1 वोल्ट टू 1 एम्पियर, दैट इज 1 ओम, जो अभी मैंने बताया 1 ओम, ठीक है ना। So next I'm going to give you some numerical and explain some numerical. So let example that the potential difference between 2 points of a wire, if someone is saying that the potential difference that is V, okay, between 2 points of a wire carrying 4 ampere current, कितना एम्पियर, 4 एम्पियर करंट को कैरी करता है, ठीक है। और करंट क्या है, करंट इज 0.2, सो करंट इज 0.2। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिटवीन दीज पॉइंट्स। एक बार और फिर से सुनिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 4 एम्पियर करंट इज 0.2 वोल्ट। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिटवीन दीज 2 points. So here what is given, I is given, that is 4 ampere, okay, and the second thing is V is also given, that is 0.2 volt. Clear? So what we have to find out, we have to find out the resistance between these 2 points. So what is the formula for resistance, what is R, that is V upon I from Ohm's law। हम लोग का अब R क्या था, V अपॉन I था, वोल्टेज अपॉन करंट, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, ओके। सो पुटिंग ऑन दैट फॉर्मूला, दैट इज V इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 4। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर 0.045 ओम आएगा, ठीक है। दैट इज द ओम, यूनिट को कभी नहीं छोड़ना है ना। यू हैव टू कीप इन माइंड द यूनिट बिकॉज यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, ओके। दैट इज रेसिस्टेंस इज R इज इक्वल टू 0.05 ओम, दैट इज योर रेसिस्टेंस, ओके। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ओके। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओगे देन ओनली योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड। जब न्यूमेरिकल बनाओगे तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये फिजिक्स जो है यू हैव तुमको ये आपको कभी रटना नहीं है, ये आपको क्या करना है, समझाना है। इन क्लास 9th ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू clarify the concept. Without concept you are not going to solve any type of numerical, okay. So if you understand the what is Ohm's law states, then only you can solve these numericals, okay. So next question is, a simple electric circuit is powered by a 12 volt battery and has a resistor of 40 ohms. Calculate the electric current in the circuit, okay. So यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है आपको, निकालना है क्या क्या गिवन, क्या है गिवन है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज 12 वोल्ट, ओके, एंड द रेसिस्टेंस दैट इज 40 ओम। क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करंट। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। So let me know about your answer, okay. I will give you your homework, do it by yourself, okay. So I will wait for your answer, okay. Thank you, and if you have any problem then you may ask to me, okay, and I will give you some photos of your book
and make notes of that topic. Okay, thank you.